Hi team, welcome to Ambi Boots. TAT for 13 Feb 2021 is on your screen. So without wasting any time, let's start this. सबसे पहले सत्यम लिखते हैं. I perceive one male and one female character in the image. Group of 12 to 15 years named Abhi and Preet. Abhi and Preet are brother and sister and live in a village named Kurad with their family. Their father is a farmer and works very hard to give good education to his children. Once, while working in the scorching heat on his farm, he fell ill and doctor advised a week rest. It was the sowing time of the seed, but he was ill. Abhi and Preet steps forward to sow as they have seen him sowing earlier. They both slowly sowed the complete farm at the same time, studying for their upcoming exam. When the crops got matured, reaping was done and it was a good harvest. They also scored good marks in their exam. Okay. Satyam, it is a very good story because it tells about the courage, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे थे जिन्होंने ये काम किया. ऑल्सो इट टेल्स अबाउट गुड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़, क्योंकि उन लोगों ने अपना स्कूल भी मैनेज किया. प्लस सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट हुई है. और प्लीज़ मैं मेंशन कर दें, क्योंकि उसको एक वीक का रेस्ट था, तो एक वीक के बाद पिताजी ठीक हुए और उन्होंने बच्चों के साथ कंट्रीब्यूट किया, है ना. मतलब बच्चों ने एक हफ्ते में बीज वगैरह डाल दिए. रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वॉज डन बाय फादर एंड चिल्ड्रन अलॉन्ग. ठीक है. इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी. इट्स अ 10/10 स्टोरी. सो कंग्रेचुलेशंस. नेक्स्ट लिखते हैं यश गुप्ता. आई परसीव टू कैरेक्टर्स इन द पिक्चर ऑफ एज ग्रुप 24 to 26 years. Ravi and Seema are the husband wife living in a village, Kolhapur. Ravi was a farmer and used to work hard to run his family. One year, Ravi crop was affected by pests and was very disappointed. He told this to his family, while on the other hand, Seema understood the cause and motivated Ravi to don't lose faith. Ravi and Seema both decided to work together on the field, and they decided to use organic modes of farming, and they used green manure, biopest, and other environmental friendly sources in their soil to get the production as the result of eco-friendly output, and used the crop was very effective and production also increased. Seeing this, Ravi was very happy and thankful to her wife in supporting her. Later they both told this to other farmers too in the village. Okay, यश गुप्ता, स्टोरी इज़ वेरी गुड. इनफैक्ट आई लाइक कि अब लोग स्टोरी लिखते हैं तो शुरुआत में कैरेक्टर मेंशन करते हैं, उनकी एज मेंशन करते हैं और स्टोरी की तरह इसको शुरू करते हैं. यश यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि उस इंसान की फसल ख़राब हो गई थी बिकॉज ऑफ पेस्ट, और उसकी पत्नी ने कुछ भांपा, बट शी डिड नॉट कम अप विद द मेथड्स ऑफ रिमूविंग पेस्ट अलोन. उसने बहुत कुछ बता दिया कि सब मेन्योर करेंगे, सब ऑर्गेनिक करेंगे, और 3-4 मेथड्स बताए जिससे उनकी फसल बहुत अच्छी हुई. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ द प्रॉब्लम वॉज दैट कि पेस्ट हैं और फसल ख़राब हुई, बट द वाइफ केम आउट विद द मेथड्स विच वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद रिमूविंग द पेस्ट. वो कुछ अलग थे. सो बाय दिस एक लिंक कट जाता है हमारी स्टोरी का. क्लियर? मतलब अगर ऑर्गेनिक वो पहले भी हो सकता था, हिज वाइफ कुड हैव रियलाइज इवन बिफोर ऑल्सो. ठीक है. सो ट्राई टू द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन, उनमें थोड़ा सा मिसमैच है. रेस्ट स्टोरी इज़ वेरी गुड. ठीक है. अब तो लिखते हैं आई परसीव टू कैरेक्टर्स, मोहन 15 years and his sister Shivani 12 years. Both the children left their school and were working on construction site for supporting family financially, as their father was suffering from illness. One day when Sahil, the SDM of their area, was passing by, he noticed both the children working hard. He stopped there, and when he came to know about the reason for working such a young age, he helped their family with setting up a small general shop near Mohan's house, and also provided all the essential items for selling, and advised Mohan's mother not to let both of them work in such a young age. Sahil advised her that it's an offense and she could be punished for that. Mohan and Shivani thanked Sahil for helping them and promised that they will not work from now onwards and will also go to school regularly and will study hard, working hard and with determination. Sahil joined ND and Shivani did MNS and made their parents feel proud of them. Okay, Atul. ओके, आपकी स्टोरी पे अगर मैं आऊँ तो एंड में आपने बहुत ज़्यादा विशफुल कर दिया स्टोरी को. वो इवेंचुअली लड़का इंडिया चला गया, लड़की MNS में चली गई. सो डोंट डू दैट.
द इमेज नोवेयर वांट्स कि वो लोग वहाँ तक चले जाएं, और एक इमीडिएट सक्सेस नहीं दे सकते हम 5 मिनट की स्टोरी में, ठीक है। इफ़ यू आर गिविंग द सक्सेस, टेल अस अबाउट द स्ट्रगल दे हैव गॉन थ्रू, है ना। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट दे लेफ्ट द स्कूल एंड दे आर वर्किंग, सो इफ़ इट इज़ इलीगल हाउ दे आर अलाउड टू वर्क, ठीक है। बेसिकली जो SDM है उस इलाके का, हिज पॉलिसीज़ आर नॉट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द ग्राउंड्स। इसमें उसने बीच में डांटा भी नहीं उसको जिसने उनको अपॉइंट किया हुआ है ना। वो चला गया क्राइटेरिया, उसने बच्चों को देखा और वो माँ बाप पे गया। दूसरी चीज़, पिताजी सफरिंग फ्रॉम इलनेस हैं, सो देर इज़ नो नीड टू गिव द जनरल स्टोर उनको, क्योंकि पिताजी बीमार है तो जनरल स्टोर भी नहीं चला पाएंगे। क्या हो सकता था, वो आदमी उन लोगों को कुछ पैसे दे देता सो दैट वो उस बीमारी में भी अपना इलाज भी कर लें और घर भी चला लें। सेकेंडली, वो क्या कर सकता था, एक छोटी सी मेडिकल पॉलिसी के बारे में उनको बता सकता था जो कि गवर्नमेंट ने करी हुई है। जनरली ESIC की फैसिलिटीज़ होती है फॉर दोज जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, तो वो उसके बारे में बताता। फिर वो बताता आप लोगों को पेड लीव्स अलाउड होती है, इट इज़ पॉसिबल, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें ये अलाउड है। सो बाय दिस वो छोटी सी अवेयरनेस क्रिएट करेगा, और अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं है मेडिकल क्लेम्स की तो वो उनको जनरेट करवाएगा बाय दिस। पर देखो ना, एक पिताजी बीमार है, बच्चे काम कर रहे हैं, उसने बच्चों को बोला नहीं नहीं ये इलीगल है, या फिर तुम मत करो, तुम पढ़ो, और फिर उसने उनको एक जनरल स्टोर की शॉप खोल के दे दी। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये जो इंसान की प्रॉब्लम है कि वो बीमार है, ये बहुत कॉमन है, तो हर किसी को हम जनरल स्टोर की शॉप नहीं दे सकते, और वो बहुत हैवी अमाउंट भी होगा। तो बेटर यू हेल्प देम विद अ लिटिल अमाउंट, जिससे वो बीमारी में भी अपना घर चला सकें, एंड लेटर ऑन यू कैन क्रिएट अवेयरनेस, एंड मोर ओवर ही कैन टॉक टू द ठेकेदार और जो भी उनका सुपरवाइज़र है, दैट अगर वो बीमार होते हैं तो प्लीज़ डोंट डिडक्ट देयर वेजेस, एंड ऑल्सो डोंट अलाउ यंग चिल्ड्रंस टू वर्क इन द फील्ड, ऐसा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ऐसा लगा कि SDM ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मतलब फैक्ट्री वालों को डांटा ही नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट्स वालों को, कि यहाँ पर इन छोटे बच्चों का वर्क परमिट कैसे बन गया। क्लियर। तो अगर स्टोरी में देखो, एक तो शुरुआत में स्टोरी में थोड़ा सा फ्लॉ था, और एंड में वो लोग अचानक से NDA वगैरह चले गए, डोंट ऐड दैट प्लीज़, ठीक है। इट विल मेक नो गुड यूज़। जब भी आपका कैरेक्टर सक्सेसफुल होता है बिना हार्डवर्क के या फिर बिना हार्डवर्क को दिखाए, you will not be able to project any of the qualities. Being successful is not any OLQ. The methods, the determination, the hardworking skills, these are the some of the OLQs जो mention करनी है हमें. Is it clear? आज एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन हो रखा है। ओके, शुभम लिखते हैं, रमेश एंड सुनीता वर सिबलिंग्स, दे लिव्ड इन अ रूरल एरिया, बीइंग अ सन ऑफ फार्मर family. Ramesh and Sunita knew all work of farming. They did farming works together to survive. Ramesh also told his father to use modern process of cultivation. Ramesh studied in school and he taught his sister also. He used to give more time to his study and farming works, so he got good marks in exam, and also their farmings was succeeded and his father was able to cultivate more crops, so they lived happily. Okay, Shivam story ठीक है, पर इन स्कूल दे विल दे माइट नॉट बी एबल टू टेल यू द बेस्ट मेथड्स। उसके लिए मतलब स्कूल में जब 8th 9th का बच्चा होता है, 10th 12th का भी होता है, दे कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट टेक्निक, दे कैन टेल यू द मेथड्स कि हमारे पास ये वाली फार्मिंग्स है, वो फार्मिंग्स हैं, बट टेलिंग यू इन वेरी डिटेल की फार्मिंग कैसे करी जाए, क्या करा जाए, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्लियर। सो यू कैन मेंशन कि वो लड़का बहुत जागरूक था, एंड उसने आसपास जो हर गांव में एक वो होता है जो कृषि के लिए अवेयरनेस होता है, वीडियोस बोलते हैं जिनको, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स, उन्होंने कुछ मेथड्स बताए, एंड ही वाज एबल टू कन्विंस मेथड्स टू हिज फादर, एंड दे क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से, मेड अ न्यू अप्रोच, और फिर उन्होंने पूरा का पूरा इनोवेट किया खुद को, ऐसा, ठीक है। पर स्कूल में पढ़ा और फिर माँ बाप को बताया, नॉट गुड। स्कूल, जब भी आप स्कूल की पढ़ाई को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करोगे तो याद रखना वो कुछ ऐसी होंगी कि पापा कास्ट सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता, कि देश आज़ाद है, वी हैव अ राइट टू वोट, ये वाली चीज़ें बच्चे के दिमाग में आ सकती हैं क्योंकि वो टीचर बहुत अच्छे समझा सकता है, बट टीचर टेलिंग कि प्रैक्टिकली खेत में क्या करना है फ्रॉम द बुक्स इज़ डेफिनेटली नॉट मच एक्सेप्टेबल। क्लियर शुभम। वेद लिखते हैं, राकेश एंड हिज सिस्टर शिवानी आर 14 and 15 year old, लिव्स इन अ ग्वालियर विद हिज फैमिली। ठीक है, राकेश एंड शिवानी हेल्प देयर पेरेंट्स हु वर्क एट द कंस्ट्रक्शन साइट एज अ प्राइवेट लेबरर्स।
One day while working, Rakesh saw a skit organized by Make a Difference NGO to help vulnerable children to make a better future. Rakesh and Shivani went to a shelter operative couple and showed their willingness to study, which they could not continue due to money problem. Kapil, on understanding, talked to his senior shelter operative to get both enrolled in MAD, also talked to his parents for permission and assured them proper guidance. Parents were happy to see their bright future, got them enrolled. Rakesh and Shivani soon started to improve in their academics. Okay, Ved, it's a very good story. I'll just add one point कि बजाय इसके कि वो बच्चे गए NGO वाले पे दैट दे वांट टू स्टडी, क्योंकि मुझे शुरुआत में लगा कि बच्चे मेन कैरेक्टर्स हैं और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो पढ़ना चाहते हैं और फिर आगे जाके बच्चों पे ही एक्शंस होंगे, पर जैसे ही बच्चों ने इच्छा जाहिर करी सारे के सारे एक्शन हो गए उसके मेन कैरेक्टर के और उसने उनके लिए चीज़ें ठीक करी, बातें करी एंड ही मैनेज एटसेट्रा. तो क्यों ना हम ऐसे करते हैं इसमें कि राकेश ने, मे बी आई डोंट नो द नेम, राकेश एंड शिवानी ने, कपिल, शेल्टर ऑपरेटिव कपिल, द गाय कपिल ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कपिल ने ही उन बच्चों को देखा और फिर उसने उन बच्चों को पूछा बच्चों ऐसा काम क्यों कर रहे हो, और फिर बच्चों ने बताया ऐसा ऐसा है, एंड देन ही स्टार्टेड कि अब इनको पढ़ा देते हैं, ऐसा कर देते हैं. क्लियर? तो आपका जो मेन कैरेक्टर है उसी को दे दो सारे के सारे एक्शंस. कूल. बाकी अगर नहीं भी देते तब भी स्टोरी फाइन है. मैं बस चाहता हूँ कि आपका जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए. क्लियर? नेक्स्ट लिखती है मनीषा जी. आई परसीव 2 कैरेक्टर्स, 1 गर्ल and 1 boy aged 10 and 13. Ramya, on her way to college, noticed 2 underage children working at construction site. She takes a note of it and goes to the kid, talks to them, and later meets with their parents, asks them to send them to school and also tell about all the government midday meal scheme, importance of education and scholarship. She next day comes with an NGO member and police for arresting the manager of the construction site and gets him arrested. She gets to know that there are many such migrated children who are doing child labor. So she and NGO team with the help of police does 2-day research and find many such children and stopped child labor, and also time to time she with her NGO visit to know about their condition and to help them in a way possible, and also she continued to do such work in nearby town. Okay, so Manisha, it's a very good story, lot of courage in it, lot of awareness in it, इफेक्टिव इंटेलिजेंस है. प्लीज़ एक काम करो कि उस मैनेजर को ना सीधा अरेस्ट मत करवाओ. इट्स अ बिग वर्ड, अरेस्ट. आप मैनेजर पे जाओ, उसे समझाओ, उसे थोड़ा सा हड़काओ, मतलब बी वेरी, क्या बोलते हैं, बोल्ड विद हिम, उसको समझाओ और वो समझ जाएगा, ही अपोलोजाइज. और अदर थिंग इज़ कि आप उस पर पेनल्टीज़ लगाओ, बट यू सिंपली विल गेट हिम अरेस्टेड अगेन. नॉट अ वेरी सूदिंग थिंग. मैं जानता हूँ उसने लड़कों से काम करवाया है चाइल्ड लेबर में, बट समवेयर देयर इज़ अ कंसेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स टू कि हाँ हमारा बच्चा काम कर लेगा, 2 पैसे आ जाएंगे. क्लियर? तो उसने माँ बाप को समझाया और वॉर्न किया मैनेजर को कि डोंट डेयर टू डू दिस अगेन, यू डोंट हैव वर्क परमिट्स एटसेट्रा. और उसने फ़ोटोज़ वगैरह खींची एंड देन शी सेड इस बेसिस पे मैं तुम्हें जेल कर सकती हूँ. और फिर इस तरीके से वो काम वहाँ रुका. हर छोटे बच्चे को उसने NGO के थ्रू एक अच्छा भविष्य दिया. क्लियर? अंजलि लिखती हैं आई परसीव 2 कैरेक्टर्स हेयर, 1 फीमेल नेम्ड अश्वनी एंड 1 मेल नेम्ड राजीव, 25 से 30 साल. Rajiv work as a labor under a company which deals with the construction of building houses, etc. They want to send their child to a good school but are unable to afford the expenses. So Ashwani decided to join Rajiv in his work and earn money which would help them to fulfill their wish. After working hard together, finally they collected a good sum of money and get their child admitted to a very good school nearby and fulfilled their wish with hard work and determination. Okay, so Anjali, it is a very good story. When I say very good, this time very good does not actually means very good. Actually story is very simple, where one is working and other is helping him. तो ये स्टोरी मैसेजेस बहुत ज़्यादा देती है, और दो इट इज़ सिंपल बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग, सो इट्स अ गुड स्टोरी. ठीक है. रोशनी लिखते हैं आई परसीव 2 कैरेक्टर्स इन द पिक्चर ऑफ एज ग्रुप 12 to 15. राधा एंड हर ब्रदर राजू लिव इन अ विलेज थरली. Their father is a farmer and work hard to provide better education to his children. Children are aware of their parents' sacrifices and they study hard. Apart from this, they also help their parents in household work. In they were working in a field with their parents
and they saw a man nearby. The man was an IAS officer. He nicely talked to the kids and asked about their studies. The kids were also curious and asked him about his job profile. Her brother got mesmerized after listening to his work and dreamed to become an IAS officer. He studied hard and night. After watching her brother, Radha also got inspired and studied hard. After watching his kids' interest in studies, her father sent them to Dehradun for higher education. Okay. While residing in city, Radha get to know about defense services and she was very excited to join the forces. She prepared for CDS exam. They both worked hard day and night and remember how hard their parents were working for them. They both cleared their respective examination. Radha became officer in army and her brother an IS. Now they went their village and inspired the young kids to study hard and pursue their dreams. Watching their kids, their family is very happy. Father is very happy and remember the step he has taken a decade before and was very proud of his children, realizing that his sacrifice didn't go in vain. Okay. रोशनी जी स्टोरी आपकी बहुत अच्छी है पर लंबी है. सो इफ़ इट इज़ लॉन्ग यू वोंट बी एबल टू राइट प्रॉपरली इन द एग्ज़ाम. पहली चीज़. दूसरी, द सेंट्रलाइज थीम ऑफ द स्टोरी शुड बी द टाइम व्हेन दे वर वर्किंग इन द मतलब जो इमेज में आपको दिखा कि वो दो बच्चे काम कर रहे हैं, दैट शुड बी द सेंट्रलाइज थिंग. वो वहाँ से इंस्पायर हुए और फिर वो डिफेंस में गए और फिर रेगुलर IAS वगैरह, वो बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया हमारा. तो स्टोरी का सेंट्रलाइज कैरेक्टर थोड़ा सा हटा हमारा. ऑल्दो मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था दैट यू आर न्यू टू दिस एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस स्टोरी इज़ वेरी गुड बिकॉज अगर ये इतनी जल्दी आपने इम्प्रूव किया तो धीरे धीरे आप और अच्छा इम्प्रूव करोगे. सो रोशनी, ए पर्सनल सजेशन, ट्राई टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी एंड what is shown in image should be the centralized thing for the story. मतलब ऐसा ना हो वो पीछे हट जाए और कुछ कोई और चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाए. क्लियर. जब भी ऐसा होगा कि इमेज में जो है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है और बाकी स्टोरी कुछ और है, हमें लगेगा प्री कंसीव स्टोरी है, पहले से बनाई हुई थी और ज़बरदस्ती वो पार्ट फिट इन किया गया है. क्लियर. शुभव लिखते हैं, आई परसीव 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. द 2 of them has a age about 18 years and one is 45. The gender are male, female and male. The mood is positive. The action of my story is saving the planet. Ram is the central character of my story. He is a boy of class 12. He had a sister named Rani. One day in newspaper, Ram read a news regarding the climate change taking place in the world and he also came to know that recent Uttarakhand floods are outcome of it. Ram told about it to his sister Rani. Both were disappointed by decrease in forest cover in India. So Ram, along with his sister, planned to plant some trees and plants at the backside of their house. There was a patch of land available at the back of their house. They told about this to their father. He also joined them. They went to shop, purchased some seeds. They used the home available equipment like saw, pluffing. Ram and his father pluffed the area while Rani provided them with the required things. Okay, you are going into too much of the details. They planted all the seeds. Ram watered it regularly. Took time. After some time, the barren patch of land was converted. Okay. तो शुभव ऐसा हुआ कि न्यूज़ वगैरह अखबार वगैरह देख के पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक बालक बालिका ने अपने पिता के साथ कुछ पेड़ लगाए. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड थॉट बट यू वेंट टू टू मच ऑफ डिटेल्स कि उन्होंने पौधों को ऐसा वैसा किया. एंड प्लीज़ ऑल्सो ऐड, उन्होंने आसपास के लोगों को भी समझाया कि ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस. जनरली पीपल हैव नो आइडिया कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. सोचो ना, अगर एक लेबर है जो आपके घर काम करने आता है, जो दीवार की चिनाई कर रहा है या जो मीनियल जॉब्स कर रहे हैं, मतलब जो बेसिक वो जॉब कर रहे हैं जिनमें मैकेनिकल वर्क ज़्यादा है, मेंटल वर्क कम है, तो शायद उन लोग को ना पता हो कि वो घर जाके पॉलीथीन भी जला रहे हैं तो उसका कुछ गलत इफेक्ट है हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे इकोसिस्टम पे. सो दे विल ऑल्सो डू अवेयरनेस, लिटिल अवेयरनेस. जो मिला उसको समझा दिया. ऐसा नहीं कि बैनर लगा दिए, रैलीज लगा दी, पर जो मिला उसके साथ डिस्कस किया, उनको समझाया और उनको देख देख के लोगों ने और इसको सपोर्ट किया. सिंपल ऐसा. ठीक है. बाकी योर स्टोरी इज़ फाइन. राइट अ शॉर्ट स्टोरी सो यू कैन कंप्लीट इन अ फिक्स टाइम. संदीप जी लिखते हैं, Anup is 21-year-old graduate. He has joined a two-wheeler company as a service consultant and preparing for CDS exam as well. During monsoon, his front ground of house gets flooded by the water which comes flowing from the national highway. The ground becomes muddy, which creates problem in commute with outer world. So Anup asked his sister to help him to make the ground higher by filling up the soil.
Both the siblings worked on Sunday as planned. Anup had dug a canal so the water can go their agricultural land where it can be used in farming. So they both worked hard and executed the plan. Okay, so Sandeep, this is a good story because your perception is very different from others. यहाँ पे सबने चाइल्ड लेबर वगैरह को निकालने की कोशिश की. यू केम अप विद एन आइडिया जहाँ एक भाई बहन एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. सो इट्स अ नाइस स्टोरी, अ गुड वन, एंड आई नॉट से 10 on 10, आप इससे और अच्छा कर सकते हो, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल एंड गुड स्टोरी विच इज़ शोइंग कंपेनियनशिप, ब्रदरहुड, सोशल एडेप्टेबिलिटी ऑफ कोर्स. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे करण जी. अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन देर आर 2 कैरेक्टर्स, बॉय नेम नीलेश, एज अराउंड 12, and a girl named Namrata, age around 10. Both are brothers and sisters belonging to Kapuri village in UP, and so their parent is making a new house in the village. So Nilesh and Namrata is decided to help their parents to build that house. So both are after the school comes and helped with the worker to complete their work faster. Both are used to work for 2-3 hours. Both are very hard working. Then in just 6 months their house was built and their parents are so proud. करण जी, एक तो बच्चे बहुत छोटे हैं, सो एंड दे आर हेल्पिंग द वर्कर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए. दे शुड हेल्प देयर फैमिली. मतलब पापा काम कर रहे हैं तो वो हेल्प करे बनता है, मम्मी काम कर रही हैं तो वो हेल्प करें तब भी बनता है. पर मजदूर वगैरह लगे हुए हैं और उनके साथ ये छोटे बच्चे लगे हुए हैं, दिस इज़ नॉट वेरी कूल. और ऐसा तो हुआ नहीं कि इन छोटे छोटे बच्चों की वजह से काम 6 महीने में हो गया. ये नहीं भी होते तब भी काम हो ही जाता. आई डोंट थिंक 12-13 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे. हाँ, अगर आप फोर्सफुली उनको बहुत रफ वे में ले जाओगे कि ईंट भी उठाओ, ये भी लेके आओ, ऑल द लेबरस वर्क विल बी गिवन टू देम, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. बट इट विल बी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द किड्स. देन कहीं पे ये भी लिखा है पिताजी गरीब हैं, ये हैं, वो हैं. यू कुड हैव सेड कि वो ये चेक कर रहे थे कि जो हमारे ठेकेदार हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं. दे वर कीपिंग एन आई ऑन एवरीथिंग. सो दिस विल टेल कि हाँ वो अवेयर हैं, उनके पास अलर्टनेस है, अच्छा ग्रास्प है, और बाय दिस दे आर चेकिंग कि सीमेंट ठीक डाला है कि नहीं. वो हो सकता था, पर वो रोज़ स्कूल से आ रहे हैं और पढ़ने की जगह हेल्प करने लग जा रहे हैं. इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया. एंड आई नो यू हैव रिटन कि ये नया आपके लिए, सो दैट इज़ वेरी मच विजिबल फ्रॉम योर स्टोरी एज वेल. सो ट्राई टू मेक स्टोरीज विच आर वेरी कंस्ट्रक्टिव. बहुत पॉजिटिव और अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सागर लिखते हैं, महेश वॉज 19 year old बॉय. देर वॉज एन एम्प्टी प्लॉट नियर हिज हाउस इन द लोकेलिटी which was on a disputed land of Punjab and Haryana, because of which it couldn't be sold by the government. So he decided to plant grass and other plants on that land to make the locality look more beautiful. He got the requisite amount of soil by collecting some money from his neighbors, and with the help of his friends he made that barren land into a nice garden by planting plants and grass. It took a month for everything to grow, and after this duration there was a better and green environment in the locality where everyone enjoyed. He was happy with his work and thanked his friend for helping him. सागर, ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टेट बॉर्डर है और एक सोसाइटी एग्जैक्ट स्टेट बॉर्डर पे है. मतलब अगर आप सोसाइटी से 2 कदम आगे चल के किसी लैंड पे पहुंचते हो तो वो डिस्प्यूटेड लैंड है दोनों बॉर्डर्स की. So it is actually not possible, but yes, the idea for converting barren land into converted barren land into a land which is very green is a good idea. तो प्लीज़ स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट की जगह आप लिख दो कि उस पर ऑलरेडी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं बिकॉज 2 लोगों के बीच लड़ाई है, वो दोनों क्लेम कर रहे हैं ये हमारी है, प्रॉपर्टी इशू बिटवीन द फैमिली परहैप्स. देन यू आर यूटिलाइजिंग दैट. क्लियर. और मे बी दैट वॉज अ लैंड फॉर गवर्नमेंट एंड इट वॉज पेंडिंग फॉर सम प्रोजेक्ट एंड ही रियलाइजेस कि बहुत टाइम से वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है. सो ही डिसाइडेड टू मेक इट ग्रीन रादर देन सेइंग कि एक लैंड है जो बॉर्डर पे है और बॉर्डर पे 2 सोसाइटीज़ हैं. दिस विल नॉट बी वेरी कूल. ओके. भास्कर पांडे लिखते हैं, 2 कैरेक्टर्स, फीमेल 15 to 18, 0 लिखा है मतलब न्यूट्रल, मेल 15 to 20, ये भी न्यूट्रल. In village of Dharampur, people dependent mainly on cow dung for fuel, which at many times lead to accident of hut burning and also cause deterioration in the respiratory health of villagers. Ravi, being the sarpanch of the village,
taking this into consideration, rolled out to the campaign of PM Ujjwala Yojana to shift people to clean and green fuel. Over the period of people understood the benefits of LPG gas and whole village adapted it. That also led to improved air quality in village due to reduced smog. Okay. Bhaskar, story is good, but there is one thing which we call reasoning ability. अगर गांव में आग कावडंग से लग सकती है तो इट इज़ पॉसिबल गैस से भी लग सकती है. मतलब आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस, क्योंकि आप बेसिकली आग ही जला रहे हो चूल्हे में. सो बीट गैस और बीट कावडंग वो कहीं पे भी स्प्लिट हो सकती है. वेल, इफ़ यू थिंक दैट गैस एक कंट्रोल्ड सोर्स है और कावडंग अनकंट्रोल्ड है, वो कितना भी जल सकता है, देन आई टेक योर पॉइंट इन कंसिडरेशन. ठीक है. देन द उज्ज्वला योजना, PM वगैरह, ऑल दिस इज़ गुड. ओके, सो इट्स अ गुड स्टोरी. ठीक है. शगुन लिखती हैं, आई परसीव अ मेल एंड अ फीमेल कैरेक्टर. आई नेम देम यश एंड श्रुति. यश वॉज 17 and Shruti was 13. They were brother and sister. They live in a city and they were very poor to survive according to the luxurious life of the city. They lost their mother in an accident and their father used to labor for the new building flats. Their father was very hardworking and get that much payment that they can have their 2-time meal. Yash and Shruti used to go for picking cow dung for their own use and also for sale. One day a person passing by on his car saw them and asked to go to school or not, and asked them if they go to school or not. They replied no. The man decided to give Yash and Shruti a better life of study and success, so the man went to meet their father and admitted them in a public school. Yash and Shruti were now a leading and bright students, etc. शगुन जी, पहली बात, ठीक है, सिटी बहुत लग्जूरियस है और उनकी माता जी को बिना बात के क्यों मार दिया आपने? नहीं मारते तब भी स्टोरी ठीक थी, बिकॉज इमेज में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई मर रहा है. सो डोंट इन्वॉल्व दैट अननेसेसरली. डेथ इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन. सेकेंड, अगर सिटी बहुत लग्जूरियस है तो हाउ दे आर मैनेजिंग टू सेल द कावडंग? मतलब अच्छी सिटी है तो उनके पास सब कुछ होगा, कावडंग क्यों खरीदेंगे लोग उनसे? तीसरा, आपका मेन कैरेक्टर कौन है? फार्मर्स, बच्चे, या वो जो आदमी जिसने उनको अच्छा फ्यूचर दिया? क्योंकि उस आदमी ने अगर अच्छा फ्यूचर दिया तो उसके बहुत सारे एक्शंस नहीं है मेरे पास. बस इतना है कि उसने बच्चों को बोला स्कूल जाओ और फिर उन्होंने स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया. सो योर मेन कैरेक्टर इज़ मिसिंग, हिज एक्शंस आर मिसिंग, देयर इज़ अननेसेसरी डेथ इन योर स्टोरी, एंड सेलिंग cow dung in a luxurious city as you have mentioned is again a very weak idea. Clear? So it should not appear कि आपने दिमाग से वो बनाई है. थोड़ा बहुत रिलेट करें रियलिटी से प्लीज़. बाकी इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट. इफ़ आई गो फॉर द एंटायर स्टोरी, इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट, बट टू make it good for the psyche, we need to rectify it a lot. Okay, next is that. Okay, so this much for the TAT and सबकी स्टोरीज अच्छी थी. आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है और उसके लिए सॉरी. बाकी ऑफ कोर्स विल स्लोली एंड ग्रेजुअली, जिनका नहीं हुआ है बहुत अच्छा वो कर लेंगे, जिनका बहुत अच्छा हुआ है उनको गुड लक. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, ऑफ कोर्स बहुत कम है क्योंकि टेलीग्राम में बहुत कम है. तो प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट अस so that we can come up with the live sessions. जय हिंद, जय भारत.